Hello everyone, welcome to my channel. I am Tulip and I secured All India rank 3000 in NEET 2025. So in this video I am going to tell you about my NEET day experience. You know what happened that day, how I managed the stress and other things also. So firstly, I woke up at around 9. I was really calm in the morning, but the day before, in the last night, I was very anxious that what should I revise, what's going to happen. I don't want to sleep, but still in the morning I was not anxious or stressed at all. I was calm, I don't know why. So in the morning I revised my physics formulas, my physics formula notebook. I revised rotation chapter and unit and dimension also. I revised some formulas, then I skipped physics. I also did not revise biology. I thought I know biology. I am going to revise chemistry now. So because chemistry was my weak subject and it would scare me so much. So I then revised my chemistry book portion from mind maps. I had a book of mind maps. It has, a chapter in 1-2 pages only. It was quite a good book. I revised organic, I revised, physical portion also. So I revised it and did my breakfast. And as you know, NEET exam was from 2 to 5 and the entry closing time was 1:30. So we left the home almost at 12 because the center was near my home. So when we reached there at almost 12:30, I was also not going. I thought I would revise some more. मैं अपने साथ गाड़ी में अपना एडमिट कार्ड, फोटोज़ और केमिस्ट्री का माइंड मैप, बायो के एनसीईआरटी लेके गई थी, बट मैंने रिवाइज नहीं की. तभी भी मैं केमिस्ट्री ही रिवाइज कर रही थी. आई वाज रिवाइजिंग एल्डिहाइड चैप्टर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 11th. I was revising it, but at 1 o'clock I left for to go inside because 1:30 पे the close था time. So 1 o'clock हम गए थे वहाँ. काफ़ी लंबा सेंटर था. अब वो जो मेरा सेंटर था, इट वॉज लाइक इट हैड मैनी सेंटर्स इनसाइड इट. सो सेंटर ढूंढा काफ़ी देर, फिर हम सेंटर तक पहुँचे. सो आई वाज a little bit stressed. Then entry was done, but there was a little panic there also because when checking हो जाती है, वो सब एंट्री हो रही थी, तब वहाँ कोई ऑफिशियल आते हैं, फिर कहते हैं हमें you will need postcard size photo also. Everyone was panicking that we don't have another postcard size photo. We have only pasted it on the admit card and we don't have a spare. So they're like, they need a photo and they just went inside. So it was stressful. बट बाद में उन्होंने कह दिया कि कोई फोटो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बस वही चाहिए जो एडमिट कार्ड पे ही थी. तो दैट वाज अ पैनिक मोमेंट. इसके बाद जब एंट्री हो जाती है, एंट्री में वही आपकी चेकिंग होती है. वो आपका एडमिट कार्ड चेक करते हैं, आपका आधार कार्ड चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ये सब होता है. फिर अपने रूम में जाके मैं शांति से बैठ गई थी. इट वॉज अ गुड रूम. देन they distributed the paper. It was really, my heartbeat was pumping. So okay, तो जब पेपर पढ़ा, I always start with the physics portion. I always start paper line wise, physics, chemistry and then bio. I like this order. So when I started the physics, I started solving. It's like it's a good question, but why I feel like it's a difficult paper. When I was solving, मुझसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे. मुझे लगा था ये क्या हो रहा है, तो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है. मतलब इट वॉज रियली अ पैनिक मोमेंट कि इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है ये पेपर. एंड इट टुक मी अराउंड 1.5 hours to solve physics. And I was so stressed at that moment. I would almost cry, but I stopped my tears. I was like, what is this? Why I can't solve physics? Physics was my good subject, but I was like, why I cannot solve physics? So I started solving physics. I was like, oh my god, is there only physics in this paper? I was like, when is chemistry starting? So, but still मैंने अपना धीरज रखा और पूरी कोशिश की फिजिक्स को पूरा करने की. मैं बीच में छोड़ने वाली थी कि केमिस्ट्री शुरू कर देती हूँ, बट नहीं, मैंने पूरी फिजिक्स पूरी की, पूरी अपनी जान लगा के कि इसको बस मुझे पूरा करना है. मैं पूरा सॉल्व किया, हर चीज़ जो भी हो पाया. मैंने ऑलमोस्ट 8
क्वेश्चन छोड़ दिए थे फिजिक्स के, और आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि अब क्या होगा। मैंने इतने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, पता नहीं क्या हुआ। सो फाइनली केमिस्ट्री आ गई थी। केमिस्ट्री और बायो को मैंने इतनी स्पीड से सॉल्व किया, आई कैन नॉट टेल यू माई स्पीड। I was solving so fast. I was just reading the question and marking and OMR, marking OMR. I was doing it so fast. I didn't even read it twice. तो मैंने बहुत स्पीड से फिजिक्स और मतलब केमिस्ट्री और बायो सॉल्व करी। कंपैरेटिवली मुझे बायो और केमिस्ट्री पोर्शन फिजिक्स से इजी लगा था, कि फिजिक्स तो काफ़ी मुश्किल आई थी, और कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा था अरे तो बहुत ईजी है, फिर मैंने ऑप्शन पढ़े थे फिजिक्स में तो ऐसा था अरे ये कैसा ऑप्शन है। तो फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट थी, बट केमिस्ट्री और बायो मुझे कंपैरेटिवली उससे इजी लगा। तो मैं काफ़ी शांत हो गई थी कि थैंक गॉड ये इजी है। मुझे लगा था कि मुझसे फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही, और केमिस्ट्री वॉज माई डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आई वुड नॉट। तो मुझे लगा कि अगर मुझसे फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही तो केमिस्ट्री मुझसे क्या होगा, मेरा तो गया पेपर। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी थी कंपैरेटिवली, तो उसको मैंने सॉल्व किया। बायो भी ईजी थी, ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, कुछ एक दो ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे, बाकी थे एक दो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ठीक था। तो जैसे ही पेपर पूरा हुआ, मुझे बस पेपर के दौरान यही था मन में कि मुझे पेपर करना है ध्यान से। बीच में तो मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं कैसे करूं पेपर, इतना डिफ़िकल्ट है। मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करती जा रही थी। I was feeling so depressed at that moment, but I was like, no, focus. I focused so much. I was like, I have to do it. I complete the paper, and after completed the paper, it was, my heart was full. I was so overwhelmed. I don't know what to do. I was feeling, so hopeless that this is the worst paper I have given. तो हाँ, बाद में पता चला तो सबके साथ ही था। नीट 2025 was the toughest paper, but thank God I secured 3000 rank and I kind of did it. So that happened on the NEET day. So this was my experience. तो इस एक्सपीरियंस से आपको ये भी बताना चाहूँगी कि when you reach the center, reach a little bit early. मुझे थोड़ा और पहले पहुंचना चाहिए था, ताकि मुझे थोड़ी और कम पैनिक होता। रीच द सेंटर लिटिल अर्ली, मेक श्योर यू हैव ऑल द थिंग्स, एडमिट कार्ड, योर पासपोर्ट साइज फोटो, टेक ऑल्सो अ पोस्ट कार्ड साइज फोटो, इवन इफ इट इज़ नॉट मैंशन, टेक ऑल द फोटोज। एंड वाटर बॉटल ले जानी भी मैंशन थी एडमिट कार्ड पे कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यू कैन टेक, बट चेकिंग के दौरान उन्होंने सबकी बॉटल बाहर रखवा दी थी कि वाटर बॉटल इज़ नॉट अलाउड। और बच्चे पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है क्यों नहीं अलाउड, बट देवर लाइक ऑर्डर्स आ गए नए, बॉटल नहीं अलाउड, अंदर पानी मिल जाएगा। वैसे अंदर पानी नहीं मिला, बट इट्स फाइन। आई वॉज नॉट थर्स्टी एट ऑल, आई वॉज सो बिजी सॉल्विंग द पेपर, आई कुड नॉट रिमेंबर अबाउट वाटर। तो मैं बॉटल बाहर रखवा ली थी, बट इट वॉज फाइन, क्योंकि सारा ध्यान इतना पेपर पे होता है आपको प्यास नहीं लगती। सो ऐसा होता है। तो वहाँ सेंटर पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लिखा एडमिट कार्ड पे पानी बॉटल ले जाने देंगे, नहीं ले जाने दी, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस होता है। बट उस टाइम आपको अपने आप को काम डाउन करना होता है कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं, बॉटल नहीं जाने दे ना। वहाँ किसी से आपको ना बहस करनी होती, कुछ नहीं करना होता है। जस्ट काम योर सेल्फ एंड ओनली फोकस ऑन योर पेपर, नथिंग एल्स। टेक योर आधार कार्ड एंड एवरीथिंग, ओरिजिनल आधार कार्ड प्रॉपरली, सो दैट यू डो नॉट पैनिक। और काफ़ी बच्चों का वहाँ आधार कार्ड अपडेट नहीं था, ऐसा कुछ था, उनका वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, तो वो बच्चे भी बहुत स्ट्रेस कर रहे थे। तो ऐसा कुछ ना करें, अपना आधार कार्ड भी अपडेट करा लें, और सब कुछ गाइडलाइंस पढ़ के जाएं। तो एट द डे ऑफ द एग्ज़ाम यू विल फील लेस स्ट्रेस्ड एंड यू कैन फोकस ऑन योर पेपर मोर। तो दैट इज़ इट, दिस वॉज माई नीट डे एक्सपीरियंस। So comment me down your experience and what else you want to know. Thank you.